Okay, we were on geography chapter 4, climate, and we were talking about Brazil's temperature. Now we saw that there is no difference in the temperature, or we can say there is a minimal difference in the temperatures in the coastal areas of Brazil, which are near the equator. Now further we see the winds move in a vertical direction in this region. Similarly, the convergence zone of the trade winds is weak here. As a result, cyclones are not formed. That is why tropical cyclones rarely visit the coast of Brazil. तो भी यहाँ का जो विंड है मोस्टली वर्टिकल डायरेक्शन में मूव होते हैं. वर्टिकल यानी कि ऊपर की तरफ. तो यहाँ पे जो कन्वर्जेंस जोन है जहाँ पे ट्रेड विंड्स जो है मूव होते रहते हैं. तो कन्वर्जेंस जोन जो है जहाँ पे ट्रेड विंड्स मूव होते रहते हैं उसको बोलते हैं. तो यहाँ पे ट्रेड विंड्स जो है बहुत ही स्लो है, वीक है उनका मूवमेंट. तो इसके लिए वहाँ पे साइक्लोन्स फॉर्म नहीं होते हैं क्योंकि इनका मूवमेंट वीक है. इसके लिए यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बहुत ही कम दिखते हैं. ओके, देन वी कम टू मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस कंट्री लाइज इन द ट्रॉपिकल जोन. Right, we saw the northern part is near the equator, but the major part is in the tropical zone. The equator passes through the northern part of the country. The temperature is more in this region. तो northern region में जहाँ पे equator pass होता है वहीं पे temperature high है. The average temperature in Amazon Valley is 25 to 28 degrees. तो average वहाँ पे maximum 25 to 28 ही मिलेगा. Then the climate is cooler in the highlands. Because the proximity to the sea, the coast experienced mild and humid climate. तो क्योंकि ये जो हाईलैंड्स है सी के नज़दीक है, कोस्ट के नज़दीक है, इसके लिए वहाँ का माइल्ड और ह्यूमिड क्लाइमेट है. ह्यूमिड यानी कि उसमें मॉइस्चर कंटेंट भी होता है. देन द अमेजॉन वैली रिसीव्स अराउंड 200 millimeters ऑफ रेनफॉल while नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट रिसीव्स 1000 to 200 millimeters ऑफ रेनफॉल. सो ये अमेजॉन वैली का है रेनफॉल एंड दिस इज़ द नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट. So with this we come to the end of the Brazil climate. Then we'll start with the climate of India. Now when we come to the climate of India, there are again graphs given of some important cities in India, that is Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai. Same here is a small picture of map of India and the places where it has been taken from: Mumbai, Delhi, Kolkata and Chennai. तो यहाँ पे भी same way based on the graph you have to answer the questions. We will do this during the class. We'll continue with the chapter. Now India's climate is monsoon type. जब भी कोई पूछता है कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा है तो उसे हम monsoon type में we classify it as a monsoon type climate. मतलब हम बोलते हैं India is a monsoon type of climate. The sun rays are perpendicular up to the Tropic of Cancer which passes through the middle of the country. तो you all know इक्वेटर हमारे यहाँ से पास नहीं होता है. It is towards the south, more towards the south. तो हमारे कंट्री से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है थ्रू द मिडिल. देन एज अ रिजल्ट द एवरेज टेम्परेचर्स आर हायर थ्रू आउट द ईयर. तो अगर हम इन ग्राफ को देखेंगे तो एवरेज टेम्परेचर पूरे साल भर ज़्यादा ही रहता है. देन ऑल्सो टेम्परेचर्स इंक्रीज टूवर्ड्स द साउथ. तो जैसे जैसे हम साउथवर्ड जाएंगे ऑफकोर्स टेम्परेचर्स इंक्रीज होगा क्योंकि हम इक्वेटर की तरफ जा रहे हैं. In winters, the temperatures drop to minus 40 degrees Celsius in Jammu Kashmir and parts of mountainous regions of Himalayas. You all know this, that the northern part of the country has a very cold climate. तो कभी कभी इन हिमालयाज और कश्मीर की जगह पे minus 40 degrees तक भी टेम्परेचर चला जाता है. Then the diversity in climatic conditions of India are due to the latitudinal location and altitude of the place. तो एक रीज़न ये जो चेंज है क्लाइमेटिक कंडीशंस में कि नॉर्थ में बहुत ही कूल है, साउथ में एकदम ही गर्म है. क्यों है ये? बिकॉज ऑफ द लैटिट्यूडनल लोकेशन
एंड द एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस, यानी कि एक प्लेस का हाइट न जो नॉर्थ में है वो अलग ही लैटिट्यूड पे लोकेटेड है, और प्लस वहाँ पे सब माउंटेनस रीजन्स है जो यानी कि altitude is increased. So when the altitude increases, the temperature also cools down. Now the Indian Ocean and the Himalayan ranges exert a great influence on the climate of India and the origin of monsoon. तो इंडियन ओशन और हिमालयन रेंजेस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया और मानसून्स में. विल सी हाउ. Further we see very cold winds blowing from the north are obstructed by the Himalayas. Similarly, the southwest monsoons retreat from the Shivalik and Himachal ranges of the Himalayas. See now understand this. हमारे जो हम बोलते हैं इंडिया एज अ मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, तो मानसून विंड्स जो है हमारे यहाँ से दे ब्लो फ्रॉम दिस डायरेक्शन एंड दे गो टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट साइड, यानी कि इस पार्ट में आते हैं. तो यहाँ से बारिश की शुरुआत होती है, फिर वो जो विंड्स है ऐसे इस डायरेक्शन में ब्लो होते हैं यहाँ से. ओके, नाउ देर आर हिमालयन रीजन्स ओवर ईयर. तो ये हिमालयन रीजन्स क्या करते हैं, इन विंड्स को ब्लॉक कर देते हैं, शिवालिक रेंज और हिमाचल के यहाँ पे. तो क्या हो जाता है, यहाँ से ये विंड जो है फिर से रिटर्न होते, तो हम लोग इसे रिट्रीटिंग मानसून भी बोलते हैं. And because of high temperatures in summer, low pressure areas develop in Punjab plains and the Thar desert of region. तो हाई टेम्परेचर्स होते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स पंजाब में और राजस्थान में. थार डेजर्ट यू नो, राजस्थान भी एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा रहता है. तो यहाँ इसकी वजह से लो प्रेशर एरियाज क्रिएट होते हैं. अब ये लो प्रेशर एरियाज होते हैं तो क्या होता है, दिस अट्रैक्ट्स विंड्स कमिंग फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन in the Indian Ocean which start blowing towards the mainland of India. तो अभी हाई प्रेशर से क्या होता है, विंड जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाते हैं. तो इंडियन ओशन में हाई प्रेशर विंड्स रहते हैं. तो जब इन रीजन्स में लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है तो इंडियन ओशन से ये विंड्स इन प्लेसेस पे जाते हैं, फिर ये विंड्स फिर मेनलैंड में एंटर होते हैं इंडिया की. These moisture laden winds bring rainfall. तो इन विंड्स की वजह से फिर रेनफॉल्स आते हैं इंडिया में. बिकॉज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन कॉज्ड बाय ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स इट रेन्स मोर इन द कोस्टल एरियाज. तो यू ऑल नो ईस्ट में ईस्टर्न घाट्स है और वेस्ट में वेस्टर्न घाट्स है, तो इसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होता है, इसलिए कोस्टल एरियाज में बहुत ज़्यादा बारिश होती है. द रेनफॉल रिड्यूसेस इन द लीवर्ड साइड ऑफ द हिल्स. तो लीवर्ड साइड यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन जहाँ पे हो रहा है उसके ऑपोजिट साइड में बारिश कम गिरती है. दीज विंड्स ब्लो पैरेलल टू दी अरावलीज. सी इन दिस मैप यू हैड सीन अरावली रेंजेस यहाँ पे है, तो ये जो विंड्स आते हैं वो पैरेलल टू दिस रेंज जाते हैं एज आई एक्सप्लेन बिफोर. एज अ रिज़ल्ट रेनफॉल इज़ लो इन पार्ट्स ऑफ गुजरात एंड राजस्थान. तो ये जब विंड पैरेलल ब्लो करते हैं तो गुजरात और राजस्थान में बारिश कम होती है. लेटर दिस विंड्स मूव टूवर्ड्स द हिमालयस. फिर आगे जाके ये हिमालयस की तरफ मूव होते हैं. देयर मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीजेस. तो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं उनका मॉइस्चर कंटेंट जो है इंक्रीज होता है. ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल अकर्स बिकॉज ऑफ द नेचुरल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ हिमालयस. Again we had seen obstruction of due to escarpment in Brazil. तो यहाँ पे भी obstruction हो रहा है by Himalayas. तो यहाँ पे भी orographic rainfall experience होता है. These winds return from the Himalaya ranges and their retreating journey starts. तो यहाँ से हिमालय से वो वापस रिटर्न होते हैं. While blowing from north east towards the Indian Ocean, these winds bring rainfall again to some parts of the peninsula. तो जब ये विंड्स वापस जा रहे होते तो कुछ पार्ट्स पेनिनसुला वहाँ पे रेनफॉल होती है. दिस इज़ द रिट्रीटिंग मानसून सीजन इन इंडिया. इन जनरल द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ हॉट थ्रू आउट द ईयर. तो थ्रू आउट द ईयर हम बोल सकते हैं इंडिया इज़ अ वेरी हॉट क्लाइमेट. As the Tropic of Cancer passes through the middle of India, India is considered to be a tropical region. India faces natural disasters like erratic rainfall, droughts, cyclones, floods, etc. frequently. Of course, you must have seen India में droughts भी होते हैं, rainfall, cyclones, flood
ये सब होते ही रहता है. नाउ देर आर 4 मेन रीजन सीजन्स एज पर द इंडियन मीटीरोलॉजिकल डिपार्टमेंट. ये 4 मेन सीजन्स है जो हम इंडिया में ऑब्जर्व करते हैं. द हॉट वेदर सीजन, the season of rainfall monsoon, the season of retreating monsoon, and the cold weather season. Okay, these are the 4 main seasons which India observes. Now with this we end our chapter. We will discuss the map questions and map reading during the class. Thank you.